Then we will start. In previous class, we have already studied chapter number 1 and 2. Just wait for 1 second, then we will start. Okay, tell me, what is the characteristics of software? Tell me, let us revise. What is the characteristics of software? Anyone? मैम हमें स्क्रीनशॉट की है अभी नहीं, not now. Please wait for 1 second. I'm sharing screen. Wait, just wait for 1 second. Tell me, what is the characteristics of software? In previous class, we have already studied, na? Tell me, what is the characteristics of software? We have already studied, ना? Last class में हमने ये already पढ़ लिया था. Software Ma'am, characteristics, it's software में. functionality, reliability, efficiency, maintainability, usability, and probability. But Sorry, portability. portability. But we discussed already different, na? Like software doesn't wear out. Software is flexible. Software is not manufactured. This type. Have you Yes, ma'am. remember? Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss new unit. I'm sharing this screen. Is this visible? Yes, ma'am. It's visual. Okay, thank you.
Today we will discuss software maintenance. अगर किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्लास में, then you can ask. If you have any doubt जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, you can ask. अदरवाइज नेक्स्ट यूनिट पे स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Okay. Today we will discuss software maintenance. Define the define the term maintenance. What is maintenance? Tell me what is maintenance. Okay. What is the full form of SDLC? What is the full Ma'am, form keeping of? something in good condition. Okay. Okay. Tell me what is the full form of SDLC model? System development life cycle. Software development life cycle. Software development life. Very good. Software development life cycle. उसमें फेज कौन कौन से थे? What is the phases included in SDLC model? Like first phase is requirement phase. Tell me. सभी phases के नेम बताइए एक बार. Requirement, design, create, coding, testing, and And maintenance. maintenance. So today we will discuss software maintenance. What is software maintenance? It means जब हम कंप्लीट डिजाइन कर लेते हैं, हम पूरा उसको रेडी कर लेते हैं, कोडिंग हो जाती है, डिजाइन कोडिंग सब एक डिफाइन वे में आ जाता है, तो हम कौन सा मेंटेनेंस क्या करते हैं उसके बाद? मेंटेनेंस. और दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. What is software maintenance? Software maintenance is a broad activity. एक सेकेंड. Software maintenance is broad activity that include all of the kind of errors, error free bugs. मतलब जितने भी आपके errors आए हैं या जो भी bugs है, उनको क्या करता है? ये रिमूव करता है, उनको मेंटेनिंग करता है. Any work done, like any work done to change the software after it is an operation is considered as maintenance work. The purpose of is this preserve the value of the software over time. मतलब कोई, जैसे आपने सुना होगा, हैव यू हियर्ड अबाउट वारंटी और गारंटी? कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो उसमें होता है ना, इस आपके 1 ईयर की वारंटी है या 2 ईयर की वारंटी है, तो उसमें क्या करते हैं, उस फेज में वो क्या करते हैं लोग, उसको मेंटेन करते हैं. अगर कुछ खराबी आ जाती है, कुछ इंटरप्शन हो जाते हैं, तो उसको आपको वही चीज आपको रिप्लेस करके देंगे. दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस. आई होप ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. ओके, टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. ये बताइए पहले मुझे. एक सेकेंड. Now this screen is visible or not? Is this Yes, yes. Possible. Yes, ma'am. What are the different types of software maintenance? Anybody have an idea? Tell me. Different types of software maintenance. First one is corrective, second one is preventive. चलो ठीक है.
सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अभी नहीं करते हैं, अभी हम करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस पे आएंगे, बट पहले यही करें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके अंडर आता है आपका रिक्वायरमेंट, कहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। कहाँ से हम इसको, कौन इनको एनालाइज करता है, कौन कलेक्ट करता है, टेल मी। रिक्वायरमेंट आप कहाँ से कलेक्ट करते हो, बोलिए। रिक्वायरमेंट आप कहाँ से कलेक्ट करते हो, क्लाइंट से मैम। क्लाइंट से। क्लाइंट से, और यू कैन से कस्टमर, क्लाइंट और कस्टमर। तो फर्स्ट फेज क्या होता है आपका, जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आते हैं, फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट फेज, व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। उसमें फर्स्ट फेज आता है आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और उसमें फर्स्ट फेज क्या है, रिक्वायरमेंट भी तो हम डिफरेंट टाइप से कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक सेकेंड क्या हो रहा है आज ये, रिक्वायरमेंट देखो, प्लीज राइट डाउन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट रिव्यू। आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के भी 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वन क्या था, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, Gathering the details of software and रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और यू कैन से रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट को क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज रिक्वायरमेंट रिव्यू। क्योंकि पहले हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट जिसकी नीड है या नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इट मीन्स उनको डिजाइन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में लगाएंगे कि फर्स्ट ये वाली नीड है, सेकंड देन डिफरेंट नीड है, और उसके बाद रिव्यू, हमें कैसे इनको एनालाइज करना है, कैसे इनको डिजाइन करना है, देन कोडिंग। तो फर्स्ट वन, नेक्स्ट इज, ये एक बार आप के अग्रवाल और योगेश सिंह की बुक फॉलो करना और वहां से रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस स्टेट, एक सेकेंड, ओके, टेल मी व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिथ, बताइए सॉफ्टवेयर मिथ क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर मिथ, टेल मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर मिथ। सॉफ्टवेयर मिथ्स, टेल मी, इसे बताएं एक बार, हु विल गिव आंसर। What is software myths? Tell me. Anybody have an idea? What is software myths? so as the name tells, it can be some misunderstanding or misinformation about software development. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दो बताएं, जैसे हमने लास्ट टू प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। बिल्कुल ठीक है। मिथ मीन्स भ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर उनके मिथ हो सकते हैं, पॉसिबल है, टेल मी।
It can be like, let's assume the scenario we are having our requirements to develop a software, and that project manager is leading to that, like, we want 50 people on that, 50 developers on that. So basically, maybe it need only 2, 3 developers. So like that only. I don't know exactly. नहीं परफेक्ट है बिल्कुल, कहीं ना कहीं एग्री कर रहा है। लाइक मिसकंसेप्शन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज करेक्ट, हमेशा ही करेक्ट रहता है वो, ऐसा भी नहीं है। सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल, ये भी आपका मिथ ही है कि सॉफ्टवेयर हमेशा सही काम करेगा। एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए सॉफ्टवेयर मिथ की। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर मिथ्स हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हो आप लोग, चैटिंग में आंसर करें। 4 to 5 टाइप सॉफ्टवेयर मिथ। बेटा 101 है अभी यहाँ पे, और आंसर बस एक ही बच्चा कर रहा है, सभी आंसर करें यहाँ पे। सॉफ्टवेयर मिथ सभी आंसर। Management with developers with. लाइक कस्टमर में कस्टमर मिथ किस टाइप का, उसको एक्सप्लेन करें। लाइक general statement intent is enough to program जैसे आकाश का आंसर आया ना, कस्टमर से, हाँ, जैसे उन्हें लगता है कि हमें कंटिन्यूस चेंजेस इजीली है फर्स्ट में है। ओके सिविल आकाश का आंसर आया ना यहाँ पे मैनेजमेंट मिथ्स। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें बेटा। मैनेजमेंट मिथ किस टाइप का मिथ, मैनेजमेंट तो है बट एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। That management myth may be that management timelines and cost of that software. So like that, complexity designs. कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक देखो कई ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर पे अगर ज्यादा एप्लीकेंट काम करेंगे तो जल्दी बनेगा, ऐसा नहीं है। एक बार सॉफ्टवेयर अगर एक बार बना दिया तो हमेशा वो ठीक ही काम करेगा, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर मिथ है। ओके यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे थे, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, मतलब कि हम रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर कर रहे थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड। फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, what is brainstorming session? Have you heard about this brainstorming session? No, ma'am, please explain. Brainstorming like अगर And हम sharing ideas. sharing ideas, okay, very good, sharing ideas. For example, in this class we have 100 of students, और सभी को जैसे मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है यहाँ पे, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर मिथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिथ। तो आप लोगों ने क्या किया, सभी ने अपना अपना आंसर किया, एटलीस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ने आंसर यहाँ पे शेयर किया। तो एक इसका मतलब होता है कि अगर हम जितने भी कैंडिडेट, जितने भी एप्लीकेंट इन्वॉल्व हैं किसी भी ग्रुप में, और हम उनको एक टॉपिक दे देते हैं, जैसे मैंने टॉपिक दिया सॉफ्टवेयर मिथ, और सभी ने अपने अपने व्यूज यहाँ पे रखे, एटलीस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ने। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि आपके पास जितने भी एप्लीकेंट है, अगर यहाँ पे हमारे हम टोटल मिला के 101 है, तो सभी को अपना आंसर करना है, सभी जल्दी से अपना आंसर करेंगे। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, तूफान आ जाना, तूफान आ जाना किसका, स्ट्रोम आ जाना किसका, व्यूज का, अपने सजेशंस का, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। मतलब अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को शेयर करना। I hope this is clear for everyone. What is brainstorming session? Yeah, ma'am. Okay. अब इसको रीड करना है आप लोगों को। Brainstorming is a group technique. Brainstorming is a group technique that may be used during requirement elicitation to understand the requirement. The group discussion will lead to new ideas quickly and help to
प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट करते हैं अभी फास्ट अप्रोच। व्हाट इज फास्ट अप्रोच? ये बताएं, व्हाट इज फास्ट अप्रोच? टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फास्ट अप्रोच इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग में था क्या था कि आइडियाज को शेयर करना, व्यूज को शेयर करना। नाउ फास्ट में बताएं। जल्दी से मुझे आंसर करें। Who will give answer? What is the full form of fast technique? Who will give answer? Total number of 100 students. Who will give answer? What is the full form of fast technique? Not exactly, but that's some like like something like focused, accurate, and specified, and with time. Obviously, very good. बिल्कुल ठीक है, बट बिल्कुल ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? So it फास्ट is की फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, और इसका क्या मीनिंग है? फास्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक फैसिलिटेटेड। इसमें क्या होता है कि आपका जो आप इन्वायरमेंट से जो आप सीखते हो, सराउंडिंग से आपको जो मिलता है, और जो अपने खुद के व्यू से सेट करते हो या अपने सिस्टम से शेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। इसका मीनिंग क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द एक्सपेक्टेशन गैप, the difference between what the developer think they are supposed to build and what customer think they are going to get, or you can say a team oriented approach. I hope this is clear for everyone. Yeah, ma'am. It's clear. Okay, So that, ma'am, we many have methods. we have three parameters. First one is part of the environment that surround the system, second one is produced by the system, and third one is used by the system. This is called facilitated application system technique. हाँ, अब बोलिए, now you speak. Yeah, that like in software development, we will use some methodology like agile and like that. So it is the example of fast or Sorry, please repeat. methodology we will use in software development to to build an what we can means अच्छा application बनाने के लिए we will use that methodology like agile methodology we are using. Still I'm Agile, using that. हाँ, agile is different. Agile is a different concept. Agile, what is the meaning of agile? जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो, टाइम के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता रहे, Yeah. चेंजेस हो। बट हम बात कर रहे हैं अभी SDLC मॉडल की। एजाइल मॉडल इज डिफरेंट मॉडल। ओके, Okay, fine, thank you, हाँ, उसका कंसेप्ट आएगा भी, अभी नहीं है ये। fine. नाउ दिस स्क्रीन इज विजिबल ना? Yeah, visible. This approach encourages the creation of a point team of customer and developers who work together to understand the expectation and propose of a set of requirement. We use different guidelines for fast approach, arranging meeting at a neutral site. Next is establishment for rules and preparation participation. Third one is prepare informal agenda. Appoint a facilitator, obviously जो कि control करे मीटिंग को, analyze करे. Next one is prepare a definition mechanism board, and last one is participants should not criticize or debate. मतलब ये हो कि उनके बीच में आर्ग्यू ना हो, एक दूसरे को नेगेटिव फील ना कराए, कोई झगड़ा ना हो, ये सब। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है? QFD. What is the meaning of QFD? Anyone have an idea? QFD, quality function deployment. Deployment, what is the meaning of deployment? Anybody have an Host, idea? to host the websites on some platform.
ऑब्वियसली इसका काम क्या है, रेडी करना, टू होस्ट, रेडी टू होस्ट द, जो भी आपने अभी बताया, वेरिएबल परफेक्टेबिलिटी। तो अब इसकी अप्रोच क्या है QFD की, क्वालिटी So, फंक्शन डिप्लॉयमेंट। what is the main idea behind this deployment? In this technique, the customer satisfaction is a prime concern. Hence, it is emphasized the requirements that are valuable to the customer. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का मेन क्या रूल है, क्या किस चीज को फॉलो अप करता है कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो, मतलब जो भी हमने रिक्वायरमेंट दी है वो उनको उनके लिए सेटिस्फाई हो, पहले वो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो। और क्या कंक्लूड करते हैं हम इसमें, नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूज केस। इन क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट वी हैव, और हम इन पे क्या देते हैं, वो पॉइंट्स भी देते हैं। फर्स्ट वन इज 3 पॉइंट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट नाइस टू हैव, 2 points not important, 1 point is unrealistic requirement for the exploration. Okay, हेलो मैम। next हेलो yes, hello, मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, yes, तो सब्जेक्ट के रिलेटेड बट इस टॉपिक के नहीं है। मेरा क्वेश्चन था जो मैम sorry, wait बच्चा, क्या नहीं है इस सब्जेक्ट का? नहीं, ये जो आज जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, हाँ, ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही है। मेरा जो क्वेश्चन था वो जो कब हमको एजाइल मॉडल चूज करना चाहिए और कब हमको स्पाइरल मॉडल चूज करना चाहिए। हाँ, ये तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, कि कब हमें एजाइल करना है, कब हमें SDLC करना है। ये तो जो रिक्वायरमेंट्स आएगी उनको देख के ही हमें कंक्लूड करना है। ये भी तो आपके, हाँ, अगर हमको ऐसा रिक्वायरमेंट बोल दिया गया जो हमको मोबाइल और जो एप्लीकेशन होगा वो नॉर्मल एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और वो मोबाइल में भी चलेगा और डेस्कटॉप में भी चलेगा, रेस्पॉन्सिव होगा। इस केस में हम तो इस केस में हम कौन सी मॉडल यूज करना चाहिए? नॉर्मली एजाइल चूज करना चाहिए। और इन नाउअडेज जो एजाइल मॉडल है वो एफिशिएंट है, क्योंकि वो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसकी कंडीशन से वो क्या करता है, अडेप्ट करता है। जो भी चीजें, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, जो चेंजेबल होगी, उसको भी वो अडेप्ट कर पाएगा। इन दिस एरा एजाइल मॉडल इज परफेक्ट, बिकॉज जो वाटरफॉल मॉडल, लाइक बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है, ये सारे क्या है, ऑब्सलीट हो गए। मतलब ऑब्सलीट क्या मीनिंग ऑफ कि ये इनमें जो रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, हम इनको बार बार में जाके चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है कि हमें, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो डेली चेंज होती रहती है, इवन बल्कि डेली भी क्या, कुछ मिनट के बाद चेंज हो जाता है कि मेरा जो बजट है वो इतना है, या मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इस वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मुझे अपने सॉफ्टवेयर का ये मॉडल चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होती रहती है उनके बीच, ओके, उनके बीच। और मैम स्पाइरल तभी यूज होता है जब वो जो रिस्क एनालिसिस की बात आती है, तभी यूज होता है। स्पाइरल मॉडल का यूज कब होता है, जब हम रिस्क लेते हैं। रिस्क एनालिसिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाइरल मॉडल। ओके, हाँ, आई होप दिस Thank इज you. क्लियर फॉर एवरीवन। थैंक यू। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज यूज केस। बट यूज केसेस, जैसे इनका नेम है, हेलो गाइस, जैसे कि इसका नेम है यूज केसेस, इट मींस हम यहाँ पे पर्टिकुलर गोल को लेके चलेंगे। देखिए, a use case is initiated by a user with a particular goal in mind। पहले से ही हम अपना एक गोल सेट करेंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे, and complete successfully when the goal is satisfied। It describes the sequence of interaction between actors and the system necessary to deliver the services that satisfy the goal। It also include possible variant of the sequence and alternative sequences। इसमें मेन क्या होते हैं अभी देखते हैं। देखो यूज केसेस में क्या, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यूज दिस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्टर्स, फ्लो ऑफ इवेंट, बेसिक फ्लो, अल्टरनेटिव फ्लो, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। एक डायग्राम से इसको समझते हैं। अब इज दिस स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन? हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका एक्टर। एक्टर मीन्स क्लाइंट, कस्टमर, जो हम अपने मॉडल में यूज कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टर। यूज केसेस क्या है कि हमें क्या करना है, जो भी मॉडल बनाया कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये इसको डिफाइन करता है। एंड दिस एरो इज
रिलेशनशिप, ये किस चीज को बताता है? रिलेशनशिप को बताता है। इन 3 टर्म्स को अच्छे से समझिए, एक्टर, यूज केस, रिलेशनशिप। ये आपका यूज केस में यूज होता है। अभी के लिए आप 5 मिनट में एक बार रिवाइज करिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अगर आपको यूज केस बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? रेलवे रजिस्ट्रेशन, सभी के पास लैपटॉप है, ऑल ऑफ यू हैव लैपटॉप। कोई फोन से भी पढ़ रहा है, सभी के पास, ऑल ऑफ यू हैव लैपटॉप। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो आप जो बुक मैंने यहाँ पे डाउनलोड, जो मैंने बुक डाउनलोड की है यहाँ पे, योगेश अग्रवाल और के सिंह, आप यहाँ पे चेकआउट करिए लिंक और ये बुक डाउनलोड करें एक बार। और जो यहाँ पे यूज केस डायग्राम है, इसको रीड करें एक बार कि हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया। ये यूज केस का डायग्राम है, ये आपके एक्टर्स है या आपके प्रोसेस है या ये रिलेशनशिप है, ये बताना है हमें। तो आप 10 मिनट का टाइम ले एक बार, और इस जो मैंने बताया है टेबल नंबर 3.2 और ये बुक आपको क्या करनी है, डाउनलोड कर लो। और इसमें ये वाला स्टेटमेंट बताइए मुझे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। 10 मिनट का टाइम है। लिंक बेटा यहाँ से चेक कर लो, गिवन होगा, सभी को विजिबल होगा ये लिंक। इज दिस लिंक इज विजिबल और नॉट विजिबल ना? Yeah, it is यस मैम। visible, but ma'am, you can copy and paste to the chat now, so we can. कोई नहीं, वो तो बेटा एक बार देख लो इसमें, या फिर आप सिंपली टाइप करो योगेश अग्रवाल एंड के सिंह बुक, या बुक बुक छोड़ो, आप सिंपल सा ये देखो, define use case the approach with the help of an example। ये डालो 10 मिनट में, एक बार ये चेकआउट करो। यस मैडम लिंक शेयर कर दो ना। ओके, मैम वेट, लिंक शेयर कर दो मैम। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा डू वन थिंग, आप कोई भी लिंक से आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपके पास यही बुक आएगी, और ये लिंक, आप इस लिंक को रहने दीजिए। अब अगर आपको ये लिंक नहीं भी मिल रहा है, ये बुक ऑब्वियसली मिलेगी गूगल पे, आप जब ट्राई लिखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक फॉर योगेश अग्रवाल एंड के सिंह, तो आपको ये बुक मिलेगी। अदरवाइज नहीं भी मिल रही है तो आप सिंपली गूगल पे डालो डिफाइन यूज केस अप्रोच विद एन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप लोग मुझे बताओगे वन बाय वन कि यूज केस अप्रोच क्या है। मैंने आपको बताया उसमें एक्टर्स, रिलेशनशिप एंड जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए 10 मिनट का ये टास्क है, मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, आप जल्दी से यूज केस अप्रोच का पढ़ के और फिर मुझे एक्सप्लेन करना वन बाय वन। अब तब तक के लिए मैं अपना माइक्रोफोन, जो भी स्पीकर है, इसको म्यूट कर रही हूँ। 10 मिनट का आप लोगों के पास टाइम, और आप लोगों को ही मुझे एक्सप्लेन करना है यूज केस अप्रोच। 10 मिनट का काम है, जल्दी से करिए। Okay, ma'am.
Hello guys, am I audible? Yes, ma'am. Okay, यूज केस अप्रोच बताइए मुझे. Tell me. Hello, hello, हाँ. ma'am. Audible? Okay. Yes, audible. Yeah. यूज केस So, अप्रोच एक बार डिफाइन करें. yeah, I was going through this definition that use case problem. It will describe us for a scenario which in a system interacts with the user to achieve a specific goals. Let's take an example of railway reservation system. So in that, we are having a problem. Problem means that we have to design a railway reservation system that allow users to search for trains, check seat availability, book trains, Yes. cancel tickets, and that after that view booking history. So in that, if we are going through the use cases definition, so there will be actors, preconditions, main flow, and some post conditions. So Very good. in the Yes. actors, we uh, will have two points on that, like passenger and system. So that Very passenger yes. Hmm. who will book the tickets, and the system who will manage that booking and payments and whatever that Okay. I have booking history and all. Yes. So in precondition, we will have to make sure that user must be logging into our system. And Very good. Yes. second Yes. one, the train should be have that sorry, schedule should be have trains availability and time in our system. Obviously. So Hmm. if we are going through main flow, so here we can segregate into steps. Like Okay. first, passenger initiate the booking process, then he will search for available trains, Okay. then he will select the train and class like sleeper, first AC like that. Obviously ये And उसकी चॉइस पे डिपेंड है. yes, yes, and then system will check the availability, and after that passenger will fill the personal details on the form, and he will make sure that all details are correct, like name age and ID proof. After that, the passenger will make the payment with credit, debit card or UPI. Nowadays, UPI we are using. So Obviously. after that, the system will validate the information. He will confirm. It will confirm that booking. If payment is successful, the system will generate a booking confirm ticket and some invoice like that. We can download the digital copy Okay. for the tickets and all. So this is the main flow what we are going through. So here some negative scenario must should be there, like what if Okay. payment will fail? What if Obviously. customer is booking ticket, but meanwhile someone booked the ticket before that customer. So like Obviously. that, there are some alternative flow. So it Hmm. can be like negative scenario. Some And the customer cancel the seats obviously yes, yes, at a yes, time. that Okay. yes. So it will be like incremental and decremental things. Obviously. Very Yeah. very good. So it is आपने the बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी रोहित. रोहित ने बहुत thank ही you, अच्छी ma'am. एक्सप्लेनेशन दी है यूज केस अप्रोच की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट. Thank you. Okay, Pooja, thank you so much. Next, Vacha. Who will give answer? Use case approach with the help of an example. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 88 है. बस एक ही बच्चे ने दी अभी तक. नेक्स्ट, who will give answer? Who will give answer? एक मैम रोहित इस ने. सिस्टम के Yes. अंदर इसमें क्या होता है कि सारे लोगों के लिए एक लॉगिन और उसके पासवर्ड बनती है। तो इसमें जैसे एडमिन हो गए, पैसेंजर हो गए, रिजर्वेशन क्लर्क्स हो गए। तो पैसेंजर जब लॉगिन करेंगे तो उसका मतलब वो अपने टिकट्स देखते हैं, टिकट्स बुक करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो उसके बेसिस पर रिजर्वेशन क्लर्क उसको बुकिंग और कैंसिलेशन करके अपडेट करते हैं और रिजर्वेशन सीट्स वगैरह देखते हैं कि क्या है, ट्रेन के शेड्यूल्स क्या हैं। और एडमिन का अपना एक काम होता है कि वो ट्रेन की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ये सब। तो मतलब सारे लोगों के रोल्स प्री डिफाइंड है कि एसएस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक्टर्स, प्रोसेस और रिलेशनशिप उनके बीच में ये सब कुछ ऑलरेडी हम सेट कर देते हैं और उनका क्या Predefined टास्क होते है हैं। वो Yes, अपने ma'am. आप उसको मेंटेन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. ये होता है आपका यूज केस अप्रोच. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट आइडिया पे आते हैं अब हम. वेरी गुड.
Next, requirement analysis. What is a requirement analysis? Requirement analysis is very important and essential activity after elicitation. देखो, elicitation का मतलब क्या है कि गैदर करना, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स. जो भी आप whatever, जो भी यूजर्स, जो भी क्लाइंट्स आपको अब रिक्वायरमेंट्स दे रहा है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर इतने बजट का होना चाहिए, मेरा जो सॉफ्टवेयर उसके टाइमलाइंस ये है, तो ये सब हम गैदर करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मतलब हमें अब इन रिक्वायरमेंट्स को किस में इम्प्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है. देन वी एनालाइज, रिफाइन एंड सिक्योरिटाइज द गैदर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक कंसिस्टेंट एंड अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट. अच्छा, मुझे ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग, व्हाट इज an unambiguous requirement? Tell me. Tell me the difference between ambiguous and unambiguous requirement. Take an example. Unambiguous means there is a clarity that what exactly the requirement is. Obviously. Okay. And ambiguous में? Ma'am, it is not certain है what ना, are मतलब कि जो कि सर्टेन नहीं है, जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, या सेम रिक्वायरमेंट रिपीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट वी विल कम. This activity reviews all requirement and may provide a graphical view of the entire system. First one is draw the context diagram, develop prototypes, model the requirement and finalize the requirement. Context diagram क्या है? जैसे हमने use case का diagram बनाया, we have to use actors, relationship and process. In the same context diagram, we use another types of parameter set like ड्रॉ एंड कंटेक्स्ट डायग्राम. ड्रॉ द कंटेक्स्ट डायग्राम. अगर हमने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, द कंटेक्स्ट डायग्राम इज अ सिंपल मॉडल दैट डिफाइन द बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. इट आइडेंटिफाई द एंटिटी आउटसाइड द प्रपोज्ड सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम. ये आपका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है. लाइक एक सर्कल बना देंगे और उससे हम रिलेशनशिप से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या करना है. सिंपल ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. एक सेकेंड. Wait 1 second. Just wait 1 second. Now we will data flow diagram. What is the full form of DFD? Data flow diagram are used widely for modeling the requirement. They have been used for many years prior to the advent of computers. DFD show the flow of data through a system. The system may be a company, organization or set of procedure. अब इसमें देखिएगा DFD डायग्राम में this flow, this arrow is used for data flow. Function, what is the function of data flow? Used to connect process to each other, to source or sinks. The arrowhead indicate the direction of the data flow. And what is the use of circle? Circle is process, performs some transformation of input data to yield output data. Next is source or sink, external entity, जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है. A source of system input or sink of a system outputs. Next is data store, a repository of data. The arrowheads indicate net inputs and net outputs to store. And this is circle show the process. Next is leveling, जो भी उन्होंने लेवलिंग दे रखी है, लेवल 0, लेवल 1. कुछ लेवल 0 का मतलब बिल्कुल इनस्लाइज लेवल से करेंगे, बिल्कुल स्टार्टअप से. लेवल 2 का ही कुछ ना कुछ और फंक्शनैलिटी हमने इसमें ऐड ऑन कर दी. नेक्स्ट इज डेटा डिक्शनरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा डिक्शनरी? Or what is the meaning of metadata? Have you heard about the term metadata? Anyone?
Who will give answer? What is So metadata? it's like raw data, like not like user friendly. It's Obviously, you can say, yeah. yeah, or you can say data about data. Address of data. Address of Meta, data. metadata is data about data. And Yeah. the term is data dictionary. Families of DFDs can become quite complex. One way to manage the complexity is to augment DFD with data dictionary. Data dictionary are simple repository to store information about all data items defined in DFD. At the requirement stage, the data dictionary should at least define customer data items to ensure the customer and developer use the same definition and terminology. Name of the data item, aliases, these all are the terms. Now, next is entity relationship diagram. अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं जैसे यूज केस अप्रोच था, उसी का फर्दर वर्जन है ये ईआरडी डायग्राम। ईआरडी डायग्राम को हम बोल वी कैन से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसा कि इसके नेम में ही है, एंटिटीज, रिलेशनशिप एंड देयर एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। ओके, टेल मी व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी क्या And है कोई? entity is like a group we are having this, like we are establishing the relationship. Like our database, MS. I'm using MS SQL Express. So in that we have to set up the relationship with the with the data, with the tables, with the datagrams. Like foreign key reference, we are establishing the connections with ओके, this approach. वेरी गुड बच्चा। बस एक ही आंसर कर रहे हैं आप, मैम एक ही बच्चा आंसर कर रहा है बस। समथिंग रोहित अबाउट के अलावा कोई आंसर नहीं, एक निशांत और रोहित। मैम यहाँ पे समथिंग अबाउट 85 है टोटल नंबर ऑफ हम एप्लीकेंट, यहाँ पे 85 है, बट सिर्फ एक ही बच्चा आंसर कर रहा है यहाँ पे रोहित। इसके अलावा कोई भी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है ही नहीं। व्हाट इज एन एंटिटी? रोहित ने बिल्कुल ठीक बताया। एंटिटी क्या है? व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी इज लाइक जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे रियल लाइफ में। और यू कैन से फॉर एग्जांपल, समथिंग if we अबाउट दिस डाटा इज टू बी मेंटेन। obviously, okay, take a simple example। देखो, अगर मेरे पास 3 पेन है, 3 पे आई हैव 3 पेन्स एंड सभी का जो कलर है वो क्या है? ब्लैक है। आई हैव 3 पेन्स और उनका जो कलर है वो ब्लैक है। तो क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मेरा जो पेन है वो कौन सा है? मेरा मतलब 3 पेन है, 2 पेन किसी और के रखे हुए हैं और एक मैंने अपना मिक्स कर दिया उसके अंदर। ब्लैक 3 पेन है और मुझे अपना आइडेंटिफाई करना हो कि मेरा पेन कौन सा है। मान लो तीनों पेन बिल्कुल सेम है, कलर भी सेम है, ऊपर का जो व्यू है वो भी सेम है, तो मैं उसको अपने पेन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। यस मैम। हाँ, तो हम क्या करते हैं, 3 पेन और तीनों पेनों को हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगी, एक पेन को रेड कलर प्रोवाइड कर दूंगी, एक को मैं ग्रीन प्रोवाइड कर दूंगी और एक को ब्लैक, और जो मेरा पेन है वो ग्रीन कलर का है। तो अब इस केस में मैं इजिली अपना पेन ले सकती हूँ क्योंकि मेरा पेन ग्रीन कलर है और मुझे दिख भी रहा है। तो यही क्या होता है आपका एंटिटी, जो कि फिजिकली वर्ल्ड में क्या करे, एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं एंटिटी। मैंने एक लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया कि एंटिटी क्या है, ठीक है, जो कि यूज होगी आपकी रिलेशनशिप ईआरडी डायग्राम में। नाउ an entity is a fundamental thing of an organization about which data may be maintained। और जैसे कि रोहित ने एग्जांपल लिया डीबीएमएस वाले पार्ट्स का, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बस एक सिंपली एक अर्थ लेवल से आपको स्टार्ट किया, 0th लेवल से। नाउ रिलेशनशिप, एक दोनों एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको जो प्रीफर करेंगे वो क्या होता है आपका रिलेशनशिप। A relationship is the region for associating two entities type. These relationships are sometimes called binary relationship because they involve two entity types, like student and program। तो उसने क्या किया, रजिस्टर्स कराया है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेशनशिप। और क्या है ये, बाइनरी रिलेशनशिप है, स्टूडेंट इधर है, इधर प्रोग्राम है। बेटा वेट 1 सेकेंड, जस्ट आप रिवाइज करें 2 मिनट के लिए।
हेलो। ओके, हम कहाँ पे थे? ईआरडी डायग्राम पर, बाइनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यूनिटरी, बाइनरी, टर्नरी। एक बार रीड आउट कर लेना ये। नेक्स्ट वन इज attributes. What is an attribute? Who will give answer? What is an attribute? What is Attribute it? was attribute is something like property you given identity to some entity. Okay. Okay. Characteristics of entity. Obviously, very good. ये बिल्कुल परफेक्ट है। Characteristics of an entity. रोहित का भी on an average परफेक्ट है। अब देखते हैं attribute. Each entity type has a set of attributes associated with it. An attribute is a property. Obviously, जैसा कि आप लोगों ने कहा, property or characteristics of an entity that is of the interest to the organization, like student ID, name, address, phone number. These all are the attributes. Student जो entity है। Okay, first one is okay, आप लोग एमसीए कर रहे हो, इन टर्म से अवेयर होंगे। व्हाट इज अ कैंडिडेट की? टेल मी व्हाट इज अ कैंडिडेट की? ओके, टेल मी फर्स्ट Is ऑफ it ऑल। is it some unique ID, like means we are giving unique IDs? प्राइमरी की। देखो, सबसे पहले आता है आपका सुपर की, देन कैंडिडेट की, देन प्राइमरी की। प्राइम जो कि मिनिमल वर्जन हो। प्राइमरी की किसको बोलेंगे? जो कि मिनिमल वर्जन होगा कैंडिडेट की का। ओके, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, मुझे टाइप में आंसर लिख सकते हो। सब तीनों में डिफरेंस बताइए मुझे, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और सुपर की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये टर्म अब यहाँ पे यूज होगा। इन तीनों में डिफरेंस बताइए सभी बच्चे। All of you guys, बेटा, hi everyone, is there a person? नहीं बेटा, नॉट राइट नाउ, अभी कोई ग्रुप नहीं है। ओके, प्राइमरी की इज यूनिक की, बट विच काइंड ऑफ यूनिक की आप बताओगे ना। कैंडिडेट की इज यूनिक, तो प्राइमरी की भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। निशांत, कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई, तो प्राइमरी की भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सतीश कुमार राव, ए प्राइमरी की, हाँ वेरी गुड। ए प्राइमरी की मिनिमल और सुपर की, एंड कैंडिडेट की मिनिमल सबसे, वेरी गुड। सतीश का बिल्कुल परफेक्ट है, सतीश कुमार राव बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड दो टेबल। ओके, सतीश कुमार का परफेक्ट है। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। अभी बच्चों के आंसर आए यहाँ पे। निशान, रंजन, a primary is a single candidate that uniquely identifies.
Okay. Remove super के general term for any के that immediately remove super की बिल्कुल अभी बच्चों का आंसर ठीक आने लगे हैं देखो रोहित is simple key is any set of one or more column it can have extra okay बेटा कल जो आज की क्लास में 30 मिनट्स लेट हो गए थे हम है ना कल जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो एग्जैक्ट टाइम पे करेंगे आज थोड़ा सा लेट हो गया था हाफ एन आवर सम पर्सनल इश्यूज कल हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आज थोड़ा सा लेट था थैंक यू अभिषेक अमरजीत रोहित प्राइमरी की जो कैंडिडेट की दैट इज चोजन टू यूनिकली आइडेंटिफाई चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वेरी गुड जिसने भी आंसर दिया ठीक है सभी बच्चों का ठीक है कैंडिडेट की आइडेंटिफायर कैंडिडेट की अब हम सभी को पता है सभी ने आंसर दिया देन आते हैं आइडेंटिफायर पे आइडेंटिफायर क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर जो कि उसको आइडेंटिफाई करे लाइक एन आइडेंटिफायर इज अ कैंडिडेट की दैट हैज बीन सेलेक्टेड टू बी यूज्ड एज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एन एंटिटी टाइप दिस इज द नोटेशन फॉर आइडेंटिफायर नाउ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग ओके थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके फिर अभी बट इसमें है नहीं ओके ये इम्पोर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एसआरएस व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द full form of SRS all of you guys what is the full form of SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन okay very good बिल्कुल परफेक्ट है now उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने सॉफ्टवेयर की वो क्या होनी चाहिए फर्स्ट वन इज करेक्ट हो पर बिल्कुल करेक्ट हो सेकंड है अनएम्बिगियस सेम नहीं होना चाहिए unambiguous next one is complete next one is consistent complete मतलब complete हो consistent मतलब अगर इसमें हमने कुछ एडिट ऑन किया है कुछ अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद भी वो कंसिस्टेंट है तो ये होना चाहिए नेक्स्ट इज रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड और स्टेबिलिटी उसकी रैंक होनी चाहिए वेरीफाइएबल हो मॉडिफाइएबल हो ट्रेसेबल हो जिसको ट्रैक किया जा सके करेक्ट का मीनिंग क्या है द एसआरएस इज करेक्ट इफ एंड ओनली every requirement stated there is one that the software shall meet there is no tool for procedure that correctness if the software must respond to all button presses within 5 seconds and the SRS stated that software respond to button within a 10 second मतलब करेक्ट का मतलब ये होना चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट जो भी कंडीशन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो करेक्ट होनी चाहिए वो उसको फ्लेक्सिबल ना हो वो चेंज ना हो नेक्स्ट आता है अनएम्बिगियस कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिपीटेड ना हो सेम ना हो चेंजेबल हो कंप्लीट मींस जो भी फंक्शनल जो भी परफॉर्मेंस जो भी डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट ये सब हमने एडिट किया तो सारी कंप्लीट हो नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंट जो कि अभी हमने समझा वेरीफाइएबल होना चाहिए आपका तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं नेक्स्ट क्लास में मींस कल हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अभी के लिए जो भी चैप्टर्स हमने किए इंट्रोडक्शन एसआरएस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिजाइन और जो आज हमने जो टॉपिक किया एक चैप्टर कंप्लीट किया एसआरएस का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का गैदरिंग कैसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हो क्या कनेक्शन है कल हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक श्योर मैम थैंक यू किसी को कोई डाउट है इस सेशन में यू कैन आस्क अदरवाइज हम क्लास वाइंड अप करते हैं इट वाज गुड सेशन मैम थैंक यू एंड मैम एक प्रॉब्लम थी एक्चुअली वी आर हैविंग आवर एग्जामिनेशन इन दिसंबर
ओके। तो उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरना होता है, वो फीस वगैरह डिडक्ट होती है, लेकिन हाँ, वो जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो चल नहीं रही है। ये तो आप फिर मतलब आपका स्टडी सेंटर कौन सा है? मेरिट? ये बैंगलोर 1300। अच्छा, आपका जो स्टडी सेंटर है वो बैंगलोर से है? यस मैम। तो मेरिट वाले, जैसे कि हम जो अभी क्लास कंडक्ट करा रहे हैं जिस भी कॉलेज के, तो हम जो कि मतलब कि यहाँ पे टीच कर रहे हैं वो मेरिट मेरिट जो इंस्टीट्यूट है उनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो बेटा ये आप आपका स्टडी सेंटर कहाँ पे है? मेरा स्टडी सेंटर दिल्ली था, तो मेरा उधर से ट्रांसफर इधर कर लिया था मैंने जॉब के उसमें। हम्म। तो अभी इधर ही यही मेरा स्टडी सेंटर है और यही मेरा रीजनल सेंटर जो भी हाँ हाँ मैंने हाँ। बहुत ट्रांसफर करवा लिया था अपने। ओके। तो आप है ना अपने स्टडी सेंटर पे पता करिए, क्योंकि हमारे जो हमें जो अथॉरिटी है वो बस अपना जो भी सिलेबस है या जो काउंसिल सिलेबस तो क्या काउंसलिंग, जैसे कोई डाउट है कोई कुछ इसी को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हमें इस बात से कोई मतलब हमें आइडिया नहीं है। आप वीपीएन यूज कर सकते हो ना। सॉरी? वीपीएन यूज हो जाता है मैम, वीपीएन एक्सटेंशन होती है क्रोम में, बट तो आप उससे रोहित की हेल्प करो, जो बच्चा अभी ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा था ना, उनको बताइए, हेल्प करें उनकी। एक्चुअली मैम देयर इज नो ऑनलाइन वीपीएन इशू। की प्रैक्टिकल कैसे होगी? प्रैक्टिकल जहाँ पर स्टडी सेंटर वहीं है पे वहीं पे होगी? होगा। ओके। हाँ, जहाँ पे स्टडी सेंटर है वहीं पे पटना है होगा। मैम। ओके। हम्म। फाइन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चा, अगर आपको कोई जैसे हम यहाँ पे 77 है, तो आप किसी दूसरे बच्चे से भी अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जैसे मुझे आइडिया नहीं है कि आपकी फीस के रिगार्डिंग क्या है, क्योंकि स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर वाले ही बता पाएंगे। हाँ ओके So, फाइन। आपस में एक बार डिस्कस कर लो, किसी और बच्चे को पता हो बेटा ये थ्योरी, आप आंसर करें। फाइन मैम, थैंक यू। ओके बच्चा, चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चा। थैंक यू मैम। मैम हाँ यस मैम बोलिए। बच्चों के लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या? बेटा ये जिसमें हम फैकल्टी एडेड नहीं है, बाकी बच्चों ने अगर एक ग्रुप क्रिएट किया हो तो आप एक बार पता कर सकते हो। इसमें मैंने ऐड किया तो तुषार सर ने कहा था कि क्रिएट करने के लिए, तो तुषार सर है उस ग्रुप में, मैंने हाँ, लिंक सेंड किया हुआ है। आप लिंक शेयर कर दो ताकि मैम मैं बाकी बच्चे भी उसको फोन ज्वाइन कर लें। मैम मैं चैट में एक बार फोन नंबर डाल देता हूँ, एक बार ऐड कर दीजिएगा प्लीज। ये चलिए मैं बेटा आप भेज इस लिंक चैट में भेज डाल दो अपना फोन नंबर, है ना, मैं तो लिंक बाकी सेंड फिर कर देख दिया। लेंगे यहाँ से। लिंक सेंड कर दिया गया है, उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ, मोहित ने लिंक शेयर किया है, आप इसको ज्वाइन करें। और जो एग्जाम फॉर्म का इशू आया ना, मैं तो अभी इग्नू ने अपना यूआई चेंज किया, तो वह लोड ज़्यादा है। ट्राई करो इकोग्रेटो मोड रात में ट्राई करना, तब ओपन हो जाएगा, तो तब सर्वर पे लोड कम होता है। अब वीपीएन यूज़ करोगे तो पेमेंट ट्रांसफर का थर्ड पार्टी का इशू आएगा, डाटा ब्रीच होने की टेंशन रहेगी। वीपीएन यूज़ ना ही करो तो सही है। ये मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, एक बार जोड़ दो यार, जो अरे कह रहे थे अभी जस्ट जिन्होंने ग्रुप बना रखा है। उसमें मैंने आप इसमें लिंक लिंक शेयर कर दिया, आप इस पर क्लिक करो, आप खुद हो जाओगे जस्ट यहाँ पे ज्वाइन, आप हो मोहित जाओगे। उड़ान इस पे जो लिंक लिंक क्लिक कर लो इस ग्रुप पे, आप इस ग्रुप इस लिंक पे क्लिक करो। मैम मिला नहीं लिंक अभी तक। बेटा ये दिख रहा है देखो, चैट चैट ओपन करो, चैट जहाँ चैट तुम ओपन नहीं रिक्वायरमेंट करो। नहीं यहाँ पर रुचिका का दिख रहा है मैडम, लास्ट मैसेज। बेटा आपने रिफ्रेश करें अपने चैट को, रिफ्रेश करिए। और अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है 3 o'clock, इसको मैं वाइंड अप करती हूँ। दिख गया है आपको लिंक? मैम एक बार प्लीज रीसेंड कर दो आप। ये मोहित बेटा एक बार फिर से शेयर करें मिल ग्रुप गया मैम, मिल गया मैम। में। अब इस पर क्लिक करो, आप ऑलरेडी ज्वाइन हो जाओगे, क्लिक करते ही ज्वाइन हो जाओगे। नाउ मैं मीटिंग वाइंड अप कर रही हूँ, नेक्स्ट करना फिर कल करते हैं।
ओके बाय, थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल ज्वाइन करते हैं अगर किसी का है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चा, थैंक यू Thank- सो मच। थैंक यू मैम।